गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड जो नए हैं उनको वेलकम बहुत दिन के बाद ज्वाइन किए हो। वैसे हम वी मोस्टली वी कंडक्ट मंथली कॉन कॉल और बाय मंथली कॉन कॉल। देयर मेनी ऑफ द situations and queries are handled actually. So this session was a little bit special, so I thought to share uh, some one of the family portfolio with all of you guys, so that those who are building their portfolio, it may be little bit value add or helpful, so that you can define your strategies or plan accordingly. Okay, so let's move ahead. I am just turning off my video. Let me restart the recording as well. Yeah. Good evening everyone. So just for a curiosity, okay, um like how many of your अभी अभी ये actually portfolio is of my wife. Okay, so I don't mind to share it. In last session we shared it, but we have not recorded, and maybe uh, uh, like there was some ask by some guys few quarters back के हमें तेरा कैगर कितना है. So really I have not calculated my exact CAGR since 2014-15, बट बोलने के टाइम पे मैं बोलता हूँ यार 12% 13% से पोर्टफोलियो बढ़ रहा है. ओके, इफ एनीवन आस्क मी व्हाट इज योर टारगेट फॉर ईच ईयर, आई एम जस्ट कंफर्टेबल कि भाई एफडी के ऊपर पैसा बनता है, आई एम हैप्पी विथ इट, एंड एज सच कोई टारगेट नहीं है. और बहुत सारी एक्सेल भी बनाई है पास्ट में. बिलीव मी, एक्सेल्स भी काम नहीं करती. ओके, so because many times 70-80% time market is flattish or in declining mode, and there is just 10 to 20% of time market rallies. Okay, so market will never be linear. So that's why I stopped making the excel sheets and forecasting myself since last many years. Okay, so maybe we can just see, like, this is the small cap graph since 2019. Okay, if we draw some graph of nifty as well. Okay, so last 10 years का nifty भी देखते हैं हम. Okay, so you can see here, like, almost 10-15% टाइम ही मार्केट रैली कर रहा है. इफ यू सी ना, इफ यू ऑब्जर्व प्रॉपरली, and maybe all, or maybe you can calculate the days nifty, say, like, you can create the chat gp for formula to get the nifty data. just take a data के nifty ने last 10 years में कितने दिन रैली किया है. तो पर डे निफ्टी पॉइंट्स मोर देन जीरो, ऐसा एक सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि लाइक इन दिस 365, यानी आई गेस 250 दिन इनटू 10 इयर्स अगर आप लेते हो, तो that will become something like 250 days, to 2050 500 days का अगर डेटा निकालोगे तो खाली आपको 10-15% ही निफ्टी ऊपर दिखेगा हमेशा. ओके, एंड व्हेन वी आर इन पोर्टफोलियो बिल्डिंग मोड, so believe me, it takes at least 4 to 5 years to realize कि हम सही में रिटर्न बना रहे हैं कि नहीं बना रहे. And the reason of that is, like, we start from scratch. So many people starts their job, they start investing in mutual funds, and we start from scratch. So just example, if someone is investing 10,000 rupees per month, say, just for an example, uh, we can take I have fetched some nifty data. Okay, so you can see here, this is nifty in 2010, and if you see in last, like, in 4 years, nifty just performed, you can say, just 10 to 20%. Okay, just 10 to 20%. हम साल का हमें क्या अगर चाहिए 20%, 25% या 18% या 15%. You can see here people were frustrated during this phase. Then there was some rally this year. There was again, you can see this was almost 15% का return in 4 years. And then there was, after this, there were few good years, and then again there was some crude oil war, manufacturing war, global problem was observed during 2014-15. Okay,
देयर वाज अ ग्रीस प्रॉब्लम, ग्रीस ग्रीस भी काफी सफर कर रहा था। ब्रेग्जिट का अनाउंसमेंट हुआ था 14-15 में, वो उसके कारण भी ग्लोबल सिचुएशन सफर कर रही थी। मॉनसून अच्छे नहीं थे 2015-16 में, उसके कारण भी वो ईयर सफर कर रहे। तो यू कैन सी हियर लाइक नेक्स्ट 2 years देयर वाज ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग, and again there was some rally after demonetization, followed by what you can say, uh, some positivity in जीएसटी। तो जीएसटी रिफॉर्मेशन 2017 में आया था, उसके कारण लोगों को लगा कि जीएसटी बहुत अच्छा हो जाएगा। बट यू कैन सी कि 18 में 18-19 में देयर वेर मेनी कॉर्पोरेट इश्यूज। तो जीएसटी जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत सफर किए थे, विच डोंट हैव which don't have the capability to gather the data, और मे बी डिजिटली वर्क नहीं करते, तो उनको अनऑर्गेनाइज प्लेयर बोलते हैं हम। तो वो भी बहुत सफर किए थे इस पीरियड में। देन अगेन you can see then it was followed by covid, so you can see the market is not moving linearly. Okay, so market will be always linear. So when when we start building the portfolio na, let me unmute if people are available. Guys, my screen is visible ना, कोई glitches नहीं है ना मेरे बोलने में, या No, no, all fine, all fine. all good ना? All Okay. fine. Yeah. Okay. So you can see here when we build the portfolio, 5-6 years का पेन होता है, we don't see the returns, because thing happened is like, just example, if we are investing say 2 lakh per month, okay, so you can see here like uh, this 2 lakh SIP, next year में हम again 2 lakh SIP करते हैं, then again 2 lakh SIP, so एक बेस फॉर्मेशन नहीं होता है पोर्टफोलियो को, like we just build from scratch. So there are many tryouts, there are many discounts, we average it. मे बी अगर मार्केट ऐसा रहा तो हमें इमिडिएटली रैली नहीं दिखेंगी, एंड पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, एंड अगेन लोग मार्केट में कब आते हैं, सो देर इज अ हिस्ट्री ऑफ सिंस लास्ट 35 years। मैक्सिमम लोग मार्केट में आते हैं जब निफ्टी पीक आउट करता है। मैक्सिमम लोग मार्केट में जब आते हैं, कब आते हैं, जब निफ्टी पिक आउट करता है, दैट इज द हिस्ट्री। एंड पिक आउट करने के बाद वही होता है कि लाइक पिक आउट कब करता है, जब रिजल्ट्स अच्छे होते हैं या फोरकास्टिंग ऑफ रिजल्ट्स अच्छी होती है। एंड जब फोरकास्टिंग फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होता है, राइट, तो फोरकास्टिंग अगर गलत आ गई तो मार्केट निगेटिव भी जाता है। तो मोस्टली क्या होता है, लोग पीक पे आने के बाद जब मार्केट नीचे के साइड में या कंसोलिडेशन मोड में रहता है, तो देन रिटर्न्स आर नॉट विजिबल, ठीक है। बट देयर एज आई टोल्ड कि 10% ऑफ टाइम और 15% ऑफ टाइम market rallies. So if we see here, so if I am sipping say suppose 2 lakh rupees, okay, तो ये मैं निफ्टी को खरीद रहा हूँ यहाँ पे, okay, so I am just buying the nifty units, एंड कभी कभी मुझे ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, कभी कभी कम यूनिट, जब मार्केट पीक होता है तो कम यूनिट मिलते हैं, राइट, अपने को। तो एंड ऑफ द डे इफ आई सी द कैगर ऑफ लास्ट 15 years, अगर हम निफ्टी में भी इन्वेस्ट करते थे तो दैट इज द 11.3% कैगर, ओके, एंड 1% डिविडेंड यील्ड होता है निफ्टी के स्टॉक्स का। एंड इफ वी डू इट से स्ट्रेटेजिकली आई मीन टू से, अगर हम अब यहाँ पे खाली मैं जनवरी हर साल के 1 जनवरी को बाय करता था, यहाँ पे मैं हर 6 महीने में बाय कर रहा हूँ मार्केट को, ओके। सो क्वांटिटी ऐसा समझ लो कि मैं 1 तारीख को 60% ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और उसे 1 जुलाई को मैं 30% ऑफ मेरा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो 2/3 मैं पहले ही तारीख को करता हूँ जनवरी के, एंड बचा हुआ 1/3 मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ जुलाई के 1 तारीख को। अगर ये मोड से भी गए, अगर हमें, क्योंकि ना हर साल ना कुछ मार्केट हिस्ट्री है, मार्केट हर साल 10% गिरता है एंड फिर ऊपर जाता है, तो वी गेट सम बॉटम्स एज वेल। एंड अगर हम ये वैसे भी सिप करें, यहाँ पे खाली हम 1 जनवरी को सिप करते थे हर साल के, यहाँ पे हम 1 जनवरी और 1 जुलाई को सिप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिमाग नहीं लगाया है हमने, एंड वी कैन सी द कैगर ऑफ लाइक बम्प अप ऑफ 0.75% हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं सेकंड केस में। सिंपल फंडा है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, नो मैटर व्हाट वी विल नेवर नो वेयर द मार्केट विल गो। आप टेक्निकल चार्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है, हम अगर टाइम मिलता है तो हम शायद बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत टेक्निकल का कुछ, यानी पीपल
are unable to catch the bottom when they apply the technicals. Okay, that is the only way to make money. So here the only funda is to create wealth. We need to just sip. Okay, coming back to the PPT. So the agenda is we will try to inspire who are not rebooted it. Okay, एंड सिप जो अभी हमने डिस्कस किया, देन ग्लोबल वॉर का सिचुएशंस क्या थे, डिविडेंड का कैसा मैजिक होता है, डिविडेंड हम री इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी मैजिक होता है कंपाउंडिंग में, एंड एक थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग देखेंगे। और ये सारा मैं मेरे वाइफ के पोर्टफोलियो को लेकर ही मैं डिस्कस करूंगा। ओके, यहाँ पे हम एक्सेल वेक्सेल नहीं, मैं रियल डेटा के साथ ही डिस्कस करूंगा। ओके, क्योंकि ऐसे एक्सेल पे बहुत डिस्कस कर लिए हम, राइट? सो वी नीड सम रियल portfolio which is created. Okay, so we can see, as we discussed, there were many crises, ups and downs in market सिंस लास्ट। मैं खाली 10 ईयर का ही ये इशू बता रहा हूँ, क्योंकि 10 ईयर से ही, लास्ट 10 ईयर से ही हम हमारे ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है, एसबी के ग्रुप जो हम बोलते हैं। हमारे बहुत सारे वी कैन सी बहुत सारे लोगों ने अटेंड किया था 16 17, एंड उसके बाद हमने कंटिन्यू किया, तो इसलिए फिर मैंने यही पीरियड लिया है। मैंने 2014 के पहले का पीरियड नहीं लिया है, जस्ट टू बिकॉज मेनी पीपल हैव नॉट that have not वे नॉट प्रेजेंट और एक्टिवली इन्वेस्टेड, तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो आप वो मैप नहीं कर पाओगे मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो जैसे ब्रेक्सिट, डिमोनेटाइजेशन 16 में आया, देन बजट हुआ, जीएसटी, एनबीएफसी क्राइसिस 2019 में, कोविड का क्राइसिस, फेज 1 फेज 2, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ कोविड के बाद, देन रशिया वॉर चालू हुआ FY23 में, देन मार्केट बबल हुआ था तो 2024 सितंबर को, आपको पता है मार्केट पीक किया था। ट्रम्प टैरिफ जो पहला फेज था मार्च का, उसके कारण मार्केट थोड़ा गिरा था। देन इंडिया पाकिस्तान का जो एक छोटा मोटा वॉर हुआ था रिसेंट वाला, एंड अभी ट्रम्प का 50% का टेरिफ का डेटा है। ओके, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आए हैं मार्केट में। आई नो मेनी फ्रेंड्स जो या 16 में भी बोलते थे मार्केट पिक कर गया, आज भी बोलते हैं मार्केट पीक पे है, सो दे आर स्ट्रगलिंग टू इन्वेस्ट। दे हैव देयर म्यूचुअल फंड्स, बट उनका सिप काफ़ी छोटा है, बहुत ही कम है, यानी जितना सैलरी है उसके रेशियो में सिप बहुत कम है। ओके, सो तो जैसे 18-19 में स्मॉल कैश, अभी यहाँ पे मैंने ये डेटा लिया है स्क्रीनर से, तो 18 का सिचुएशन नहीं कैच हुआ, बट मोटा मोटा ये स्मॉल कैप का इंडेक्स है। So you can see here, the small cap index was fallen by almost 25 to 30% during 2018 and 19. Okay, so these double lines are the dips we got. Okay, ये straight यानी this is the line of recovery. So market was consolidating, then actually ये declining था, 18 में decline हुआ काफी market, 19 में flattish था, यहाँ पे decline नहीं था। The worst bottom in the small cap was in mid of 2019. People were scared. Many of our investors exited during this phase, who started investing during 2016. They exited in this bottom, who were a small cap lovers actually. And then there was a COVID, then you can see there was a little bit rally. Okay, bottom से ये डबल लाइन वाली ये बॉटम वाला रैली है, देन अगेन देयर वाज डिक्लाइन। ओके, सो ये वॉर जो मैंने ऊपर जो मेंशन किए हैं, ये सारे जो डिक्लाइनिंग फेजेस है ना, इनमें ये सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ओके, एंड in this phase, okay, so again this is a snapshot of my wife's portfolio. Okay, let me unmute few people, so let me allow, if someone want they can speak। ये टूल में ना थोड़ा सा मेरे को मैन्युअली अनम्यूट करना पड़ता है, सो गाइज डोंट एग्जिट फ्रिक्वेंटली, अदरवाइज लाइक एवरी टाइम आई नीड टू क्लिक टू अनम्यूट, टू आस्क यू अनम्यूट, बिकॉज देयर इज नो सच सेटिंग के डिफॉल्टली आप ये कर पाए। ओके, so plenty of folks have joined actually, so there are like 18 to 19 friends with us right now। Okay, so this is a snapshot of
जीरोदा अकाउंट विच आई ट्राई टू रिट्रीव, तो मैक्सिमम जो है वो अप्रैल 2020 का ये बॉटम है एक्चुअली, अप्रैल 2020 का। एंड यू कैन सी हियर, सो ये जो रेडिश, अभी ये पोर्टफोलियो का फेज है, जैसे मैंने मार्केट का फेज बताया यहाँ पे, या फिर हमने निफ्टी का फेज देखा, वैसे ये पोर्टफोलियो का फेज है, यानी हाउ पोर्टफोलियो वाज लुकिंग व्हेन वी वर इन इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे जो डार्क ब्लू डॉट्स है वो सिप सिप का अमाउंट है, फेंट ब्लू डॉट्स विड्रॉल्स है। तो कभी कभी पे आउट विड्रॉ होता है, कभी कभी मैं खुद विड्रॉ किया होगा दूसरे अकाउंट्स में डालने के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये अकाउंट में से सिंगल पेनी विड्रॉ करके मैंने खर्चा करने के लिए यूज नहीं किया है। देर वॉज अ नो सिंगल पेनी विड्रॉन फ्रॉम दिस अकाउंट entirely since 2017. So the journey of this portfolio started in 2017. So what I thought कि like previously expenses थोड़े ज़्यादा थे हमारे, घर घर का लोन था, एंड दो घर थे उस टाइम पे हमारे, 16-17 की बात है, तो वी सोल्ड वन होम which was on loan, and then some little bit saving started in our account. We changed the jobs. Okay, we me and my wife both were working. So what I thought while creating this account, this is my wife's account. Okay, so I, as I discussed, I may not show my account. It is huge, but let's not go into that. So ये account sufficient है अपने हमारे लिए. So I started the journey in 2017 January. So I created the Zerodha account during that phase, and I started simply what I did कि जितना पैसा बच रहा है वो मैं नहीं डालता था। पहले दिन ही अपना एक्सपेंसेस हमें पता रहता है, तो पहले दिन ही मेरा पैसा जो है मेरे वाइफ के अकाउंट से डीमैट में जाता था। सेम अप्लाइड फॉर मी एज वेल। ओके, so that started with say 10-20,000 initially. Okay, and then slowly we build the portfolio. 17-18 लाख का पोर्टफोलियो हुआ था कोविड के पहले। कोविड के बॉटम में वो पोर्टफोलियो आई थिंक 9 लाख या 8 लाख तक पहुंचा था। ओके, एंड देन माय वाइफ गॉट एन ऑफर जस्ट बिफोर द लॉकडाउन, and the company deferred. I will not name the company. After lockdown, company deferred. So for 3 months they were just saying we will give you joining later. So बोलना एक है कि वो जो पीरियड था 4 महीने कोविड का पीरियड था, एंड देन उसके बाद और 5 मंथ्स में वाइफ ने जॉब, हमने फिर कंपनी ही नहीं, यानी जॉब ही नहीं ढूंढा एक्चुअली, बिकॉज वी वर एंजॉइंग द कोविड पीरियड एंड आई वॉज इन नेटिव प्लेस. So till December, January, there was no SIPs done in this account. Okay, so जो कुछ भी पुराना था वो पुराना था। एक मोटा, एक छोटा मोटा अमाउंट शायद मैंने पंप किया होगा, but that was not reasonable. And then after she got the job, she again started SIP. Again this was the just slow down. So इस टाइम पे मैं मेरे अकाउंट में शायद तो कुछ एक्सपेंसेस मेरे वाइफ के अकाउंट से किए होंगे, तो मेरा अकाउंट में सिप चालू होगा उस टाइम पे. And then again the journey continued. Then this was the Ukraine period. यूक्रेन वॉर का पीरियड था ये जो अपसाइड जो दिख रही है, जस्ट यूक्रेन वॉर का थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया था, एंड सो ऑन. ओके, so these raid are like I have withdrawn the funds from here. I moved some of my fund in some another account, because at this period I left my full time job and I was a full time investor at that point. So I started trading as well. तो ट्रेडिंग भी मैं 2018 से कर रहा था, तो वो नई चीज नहीं थी मेरे लिए. सो कैश ट्रेडिंग मैं करता हूँ, तो आई मूव सम फंड्स फ्रॉम दिस अकाउंट. सो दिस रेड सर्कल शोज दैट, एंड so that account is also, तो consolidated ही मैं अभी आपको पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ. So and during this phase we also bought house. So again some fund was used to buy the new house. So वो भी मैंने डिडक्ट कर लिया है, like that is not part of this portfolio again, right? And then there was the this was pre-election rally, then election rally, and then ये पूरा एंटायर ईयर हमारा, यू कैन सी हियर, दिस इज अ वेरी लंपी पीरियड. मार्केट हैज, एक साल बीत गया है, 26 सितंबर को मार्केट ने, निफ्टी ने हाई बनाया था. उस वो हाई जो 26,200 है, वो अभी भी रीच नहीं हुआ है गाइस. सो इफ यू सी लास्ट 1 ईयर का, तो एक 26-27 सितंबर को जो हमने
2600 200 बना 26,200 बनाए थे. We are not yet reached that moment. Okay, but still the sips, whenever required, the sips are going on over here. Okay, and yeah, so uh, just I will ask if someone is actively investing. Okay, again guys, this is not for comparison, this is just a open talk. Okay, so I don't want to hesitate, or maybe don't hesitate to ask, speak. Let's have a open conversation. ये सारे अपने ही लोग हैं एसबी के मेंबर, लाइक 99% 95% एसबी के मेंबर्स है, बाहर का मेंबर नहीं है. तो देर इज नो नीड टू हेजिटेट. So I will just ask, like, how many of your spouse, or maybe if your spouse is working, and maybe if they joined here, then what? Are you sipping for your spouse if she is working in their account, mutual fund ho ya kuch bhi ho? Anyone? Hello? Yeah, anyone's spouse working and you are sipping in her account? Yes, Amit. Okay, okay, cool. So, like what I have seen, the trend is okay. स्पाउस लोगों को यानी वाइफ लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता है स्टॉक मार्केट में. उनको लगता है स्टॉक मार्केट बहुत डेंजर है, एंड दे इन्वेस्ट, मोस्ट ऑफ देम इन्वेस्ट इन गोल्ड और एफडीज. दिस इज द स्टैंडर्ड ट्रेंड आई एम लुकिंग ओवरऑल. और कुछ लोगों के म्यूचुअल फंड जाते हैं, बट रमाकांत, कैन यू प्लीज अनम्यूट yourself? हेलो, 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 हेलो. Okay, fine. Okay, so cool. Like I am happy. Few people's spouses are also invested in market, or investing in market, or sipping. Okay, but we know the trend के यार मियाँ बीबी जॉब कर रहे हैं, पगार बढ़ गया, हम जाके ना जॉइंट लोन ले लेते हैं. एक घर तो है, सेकंड होम, या फिर प्लॉट्स ले लेते हैं हम, बिकॉज योर वाइफ डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मे बी स्टॉक मार्केट, बिकॉज मे बी आर सेल्फ वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो वाइफ तो दूर की बात है. ओके, सो देर आर ओनली 3 or 4 वुमेन्स इन आवर ग्रुप हु आर एक्टिवली इन्वेस्टिंग बाय देमसेल्व्स. बट अगेन देर इज अ थिंग के हर चीज़ें अपन हस्बैंड को पूछते हैं, यार मैं मार्केट में डालूँ क्या, अपने खुद के डिसीजन ही नहीं है. ओके, सो सो दैट इज द पीटीएस पार्ट. बट लेट मी टेल यू, इंडिया के टॉप 2 फंड मैनेजर्स है जो वुमन है. एक कोटक की है, एक इडलवाइस की है. आप गूगल कर लो, आपको नाम पता चलेंगे. एंड दोज आर वन ऑफ, लाइक, वन ऑफ द टॉप नॉच इन्वेस्टर्स. ओके, घर में हमारी बीवियाँ, हमारे स्पाउस लोग घर का फाइनेंस मैनेज बहुत सही तरीके से करते हैं. जितने पैसे देते हैं ना हम उनको, या फिर जितने एक्सपेंसेस के लिए हम निकालते हैं ना, कट टू कट घर में हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर हम बोल सकते हैं, वो लोग ना प्रॉपरली मैनेज करते हैं. बट जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है, देन देर इज ह्यूज हेजिटेशंस. ओके, बिकॉज डर लगता है. डर क्यों लगता है? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मार्केट में इन्वेस्ट जब करते हो, सिप करते हो, कम से कम 5 to 6 years का ब्रीदिंग पीरियड चाहिए. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन निफ्टी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल और माइक्रो कैप और मिड कैप, देन वो थोड़ा सा 2-3 साल अपने को पेशेंस चाहिए रहता है. सो दिस पोर्टफोलियो ग्राफ itself is showing के how the portfolio is like growing in this case. Okay, so one more query. Everyone knows if your spouse are working or doing businesses. Okay, so whatever earning, so just example हम मानते हैं कि जो कुछ भी सीटीसी है आपका, एनुअल सीटीसी. ओके, सो क्या ये अप्लाई करता है हमारे स्पाउस के लिए भी, और मे बी शायद आपके लिए भी अप्लाई करेगा. तो आपका जो एनुअल सीटीसी है, या आपके स्पाउस का एनुअल सीटीसी है, क्या हमारा पोर्टफोलियो, इफ यू आर इन्वेस्टेड से सिंस लास्ट 7-8 years, क्या आपका पोर्टफोलियो आपके सीटीसी को क्रॉस कर चुका है? शायद. यस गाइज, यू कैन आंसर.
आई नो फ्यू गाइस जिनका पोर्टफोलियो शायद क्रॉस कर लिया होगा आपके सीटीसी को. Yes, yes. हो गया है, ओके. क्रॉस कर गया। ओके. एंड व्हाट अबाउट योर स्पाउस हु इज वर्किंग, उनका पोर्टफोलियो सीटीसी को क्रॉस कर लिया है, उनके सीटीसी को से मान लो अगर उनका 5-6 लाख इनकम है स्पाउस का, तो क्या उनका सीटीसी क्या आपका इन्वेस्टमेंट्स उनके सीटीसी को क्रॉस कर चुका है? नहीं, उनका नहीं है। नहीं, वो नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है. मे बी उनके पास गोल्ड होगा थोड़ा बहुत, या फिर हम गोल्ड थोड़ा थोड़ा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, राइट? So the philosophy behind, guys, please go on mute. Guys, so the philosophy of building my wife's portfolio was the same. The one of the best asset we have in market is the stock market. Okay, and it will always perform better than your farm, considering longer horizon, and considered you are not making mistake in stock market, just buying at peak and not buying at the bottoms or not sipping entirely, तो तभी आपका रिटर्न अच्छा आएगा. ओके. सो इफ यू सी द एग्जांपल्स, फार्म प्लॉट, आप कोई भी एसेट क्लास ले लो, स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज बिट. ओके. वो मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे कैसा, क्या मैं बोलना चाहता हूँ. ओके. सो एनी लाइक अभी देखो यार, ये पोर्टफोलियो ना वाइफ का है और ये ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आए हो कि यार कितना हुआ होगा पोर्टफोलियो. सो एनी गेसेस कितना होगा ये पोर्टफोलियो वर्थ? एनी रैंडम गेस यार. सीटीसी क्रॉस कर लिया है, वॉट एवर बी द सीटीसी. एनी गेसेस? 1.5 CR. 1 करोड़? Yeah. तुमने देखा होगा तो यार तुम बात मत करो, ओके? तो पिछले सेशन में अगर कोई अटेंड किए होगे या फिर, तो या सो द पोर्टफोलियो वैल्यू ऑफ माय वाइफ, सो यहाँ पे ये एक ही अकाउंट है, इसको मैं कंसोलिडेटेड वे में यहाँ पे रखा हूँ. ओके. सो again, just to like, I don't want to give the verification and justifications. This is it. Okay. तो 2017 से चालू किया था हमने इन्वेस्टमेंट्स. ओके. तो निफ्टी उस टाइम पे 8,350 था. 8,350 निफ्टी की बात कर रहा हूँ. सो निफ्टी इज ऑलमोस्ट 3x फ्रॉम दैट टाइम. ओके. निफ्टी इज ऑलमोस्ट 3x फ्रॉम दैट टाइम. ये आज का ही शायद मैंने वैल्यू उठाया है. तो ये मैंने ये एक्सेल बना के रखी है गूगल शीट पे, जो रोज अपडेट होती है. ओके. सो आई डोंट हैव टू टेक केयर, खाली जो अगर कुछ बाइंग होती है मैं गूगल शीट में डालता हूँ. तो 2017 से सिप चालू किया है जनवरी से, एंड स्लोली स्लोली वो पोर्टफोलियो बिल्ड किया है. एंड हमारा एक ही रूल है, जिस दिन सैलरी आती है उस दिन या फिर उसके दूसरे दिन यानी 1 तारीख को हमारा पूरा पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो हमारे डीमैट में जाता है. एक्सपेंसेस सबको पता है, ईएमआईस पता है, मंथली एक्सपेंसेस पता है, तो उतना अमाउंट खाली हमारे अकाउंट्स में रहता है. ओके. अब यहाँ पे वी नेवर ट्राई टू टाइम द मार्केट, वी डू अ स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स. ओके. तो स्टॉक पिक यानी क्या? पढ़ाई करो, फंडामेंटल से फिल्टर करो एंड अप्लाई दैट रूल. ओके. सो 26/9/2024 को जो मैंने बोला था कि निफ्टी ने पिक किया था, इस टाइम पे हमारे पोर्टफोलियो ने भी पिक किया था. तो पिक की वैल्यू जो थी ये पोर्टफोलियो की, दैट वाज 1.7 CR. This is 1.7 CR. Okay. And after that there is some amount I sipped recently. I sipped some amount. Okay. So the current value, आज का, आज 4 तारीख है, ये करंट वैल्यू है. तो आज का वैल्यू जो है वो 1.63 CR है. ओके. एंड जब मैंने एक साल पहले जो कैगर, अभी मैं बिलीव मी मैं कभी कैगर कैलकुलेट नहीं किया. माय एक्सपेक्टेशन इज भाई 12% के ऊपर है. ओके. एंड आई माई सेल्फ वॉज सरप्राइज टू सी सच कैगर. ओके. ऐसा नहीं है कि कोविड के बॉटम में ही पैसा डाला है, हमारे कोविड के पहले भी पैसे लगे हुए थे, एंड कोविड में खाली हमने सिप किया है. एंड जहाँ पे बॉटम्स आए वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सिप किया होगा मोस्ट प्रोबेबली. तो निफ्टी का कैगर उसी पीरियड के दौरान, लाइक आई हैव फेस्ड द डेटा. ओके. आई हैव फेस्ड द डेटा एंड आई हैव लाइक कैलकुलेटेड दिस. तो उसी फेज के दौरान निफ्टी का ये कैगर है, निफ्टी का
सिप का एक्सआरआर नहीं है ये। ओके, मैं उस पे भी आता हूँ, निफ्टी के सिप के एक्सआरआर पे भी आता हूँ। ओके, तो फास्ट फॉरवर्ड आज निफ्टी वो पॉइंट से जैन 2017 से 13.4% के कैगर का रिटर्न दिया है। दिस इज कैगर डेटा। ओके, बिकॉज व्हाट विल हैपन, दिस इज लाइक 17 का स्टार्ट पॉइंट जो कुछ भी होगा एंड दिस पॉइंट, तो इनमें का मैंने सीधे फॉर्मूला डाल के इसका कैगर कैलकुलेट किया है। एंड व्हाट इफ मैं निफ्टी, मैंने जिस दिन मैं सिप कर रहा हूं, अगर उस दिन अगर मैं निफ्टी को खरीदता था, ओके, जिस दिन मैं सिप कर रहा हूं उस दिन अगर मैं निफ्टी को खरीदता था, तो मेरा एक्सआईआरआर ये बनता था 13.4%। तो एक्सआरआर ऑलमोस्ट सेम है। ये कल तक के थोड़ा डिफरेंट था, कल या परसों तक। आज ऑलमोस्ट सेम है, 0.2 से डेविएट हो रहा था। एंड अगर मैं मेरे खुद के स्टॉक्स न चुन के मैं अगर निफ्टी इंडेक्स खरीदता ना, तो मेरे रिटर्न्स 13.4% के कैगर से बनते। ओके, तो अगर मैं कर रहा हूं और निफ्टी में अगर मैं करता तो उसका डिफरेंस कितना है अभी। तो एब्सोल्यूट बेसिस पे हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी को 31% से बीट किया है एब्सोल्यूट बेसिस पे। और कैगर यानी हर साल का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, तो हर साल हमने निफ्टी को 11.5% से बीट किया है। आई वॉज सरप्राइज टू व्हेन आई फेस दिस डेटा एक्चुअली, बट दिस इज द फैक्ट्स। ओके, एंड एब्सोल्यूट बेसिस पे वैल्यू कितनी चेंज हुई है, तो आज पोर्टफोलियो 1.6 का है। अगर ये हम निफ्टी में डालते तो हमारा जो पोर्टफोलियो का जो डिफरेंस रहता है, यानी 51 लाख कम मेरा नेटवर्थ रहता। ओके, अब व्हाट आर द स्टॉक्स काउंट्स एंड दैट ऑल थिंग। तो 45 अराउंड अप्रोक्स, एक दो स्टॉक कम ज्यादा, 45 अराउंड स्टॉक्स है। 1% के ऊपर अलोकेशन 40 स्टॉक्स में किया गया है। टॉप 30, अभी मेरा कॉन्सेंट्रेशन रहता है कि ये बड़ा पोर्टफोलियो है। ओके, सो आई एम नॉट अ, इवन आई एम फुल टाइम, even I feel myself as a new guy and I can't go concentration। मैं 10 स्टॉक में ना ये पूरा वर्थ नहीं डाल सकता। I don't have option but to diversify। Recently one of the stock went to zero, like our allocation was say 2 to 3% in this account and that allocation went three baggers। हमारे 2% के allocation तीन बैगर हुए, तो अप्रोक्स 6% अलोकेशन हो गया था एक ही स्टॉक में। एंड दैट स्टॉक वेंट बैंक। वो स्टॉक का नाम जिनसोल है। वो भी हिट ये पोर्टफोलियो ने एब्जॉर्ब किया है। यानी यहाँ पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है पोर्टफोलियो को कि इतना बड़ा होल्डिंग हमारा इरोड हो गया, यानी जीरो हो गया है लिटरली। आई विड्रॉन ओनली 5% और 8% ऑफ दैट जेंसोल। जेंसोल का स्टोरी सबको पता है, राइट? सो सो अगेन लाइक तो रिस्क भी जो हम लेते हैं ना, तो नए स्टॉक जब हम स्मॉल कैप माइक्रो कैप लेते हैं तो रिस्क भी कम लेते हैं, सो दैट हमारे पोर्टफोलियो को ज्यादा, तो इसलिए मैं ज्यादा शाना नहीं बनता। 20-15 स्टॉक्स का मेरा कसम से जिगरा नहीं है। सो व्हाट आई डू, आई डाइवर्सिफाई इनटू 30 स्टॉक्स। बट अगेन व्हेन सिचुएशन कम्स द कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस। तो कभी कभी 85% प्लस का अलोकेशन कभी कभी 25 स्टॉक्स में भी रहता है। तो दिस चेंजेस। सो फॉर न्यू आइडिया आई नीड टू ट्राई आउट। ओके, सो अभी हम बोल रहे हैं यार मार्केट खराब है, मार्केट खराब है, एक साल से मार्केट खराब है हम बोल रहे हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो फिर भी क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है? यानी अगर आप देखोगे निफ्टी हाई से, अभी के डेट में निफ्टी हाई से अप्रोक्सीमेटली 10% डाउन है, बट हमारा पोर्टफोलियो हाई से अभी हमने कुछ पैसा इसमें डाला है, तो हमारा पोर्टफोलियो हार्डली निफ्टी शायद 8% 7% डाउन होगा। या हम स्मॉल कैप का हमारा ज्यादा लोकेशन है 90%। स्मॉल कैप पीक से लगभग 10 to 12% डाउन है। एंड हमारे पोर्टफोलियो पीक से 5% ही डाउन है। अभी ये इतना कम क्यों गिरा? 5 या 6% होगा कुछ तो इतना कम क्यों गिरा है? बिकॉज वी चूज गुड कंपनीज एंड 30% ऑफ माई होल्डिंग, 30% of the holding in this account is touching the new high। 30 यानी इवन द मार्केट इज बेकार, इवन द मार्केट इज नॉट गुड, 25 to 30% stocks are touching new high। ओके,
and those are hedging the returns, negative returns, whatever. There are possibility कि कंज्यूमर स्टॉक्स बुरे कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स बुरा कर रहा है, बैंकिंग के स्टॉक्स बुरे कर रहे हैं, बट देर आर फ्यू अदर गुड स्टॉक्स विच आर परफॉर्मिंग एंड विच आर हेजिंग, ओके। एंड जब रैली आएंगी तो ऑब्वियसली पूरा पोर्टफोलियो ऊपर जाने वाला है। तो in 2 to 3 years, what I can see, so I have calculated the EPS, the growth, and whatnot things. If the market situation remains good, then in 2 to 3 years the portfolio will move 60 to 70% more than this current value. I hope this is clear, like what I'm talking. Okay, so the reason मैं क्यों बोलता हूँ सबको कि प्लीज प्लीज डोंट थिंक हम गोल्ड को ना निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि गोल्ड ने परफॉर्म निफ्टी जितना किया है लास्ट 15 साल में, बट गोल्ड का आप हिस्ट्री देखो। 1998 में गोल्ड वॉज एट 5,000। मैं 1998-99 की बात कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट 1-2 साल कम ज्यादा हो गए। मैं 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज गोल्ड 20 गुना दिख रहा है। ओके, आज गोल्ड 20 गुना दिख रहा है। अपने को कितना बराबर ना, 20 गुना, 1 लाख को टच क्रॉस कर लिया गोल्ड। 21 गुना है गोल्ड। ओके, अब हम बोल रहे हैं इफ आई एम ग्रोइंग विथ, अभी ये तो आई वॉज लकी, मे बी कुछ स्टॉक्स अच्छे चल गए, फ्यूचर में थोड़े बुरे चलेंगे, बट इवन दो वी परफॉर्म 20% कैगर, ओके, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन द गोल्ड और एनी एसेट क्लास। एंड निफ्टी से तो कंपेयर करना ही नहीं है, राइट। एंड अभी ये इसका कितना वैल्यू क्रिएट होगा मैं आगे बताऊंगा, लाइक व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो। ओके, सो डोंट जस्ट, एंड अगेन म्यूचुअल फंड्स भी लास्ट 7-8 साल का ना डेटा कोई म्यूचुअल फंड नहीं बता रहा है। जस्ट गो बैक एंड चेक यूर म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ने भी लास्ट 8 सालों में शायद 16, 17, 18 कैगर के रेंज में ही आपको रिटर्न दिया होगा। आई गारंटी, आप जाके देख लो। अभी अपने को खाली 5 साल का रिटर्न बना बता रहे हैं। इफ यू सी व्हाट व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर शोइंग नाउ, आइदर 5 साल का रिटर्न और 10 साल का रिटर्न। 7-8 साल के कोई म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं बता रहे हैं। ओके, यानी लास्ट 7-8 साल से आज तक के का। ओके, कैगर में रिटर्न तो अलग ही कैलकुलेट होता है। एंड अब देखो यार, 5 साल पहले तो कोविड का सिचुएशन था यार। आप कोई भी एसेट क्लास को लोगे ना, अगर मैं बॉटम लूंगा ये वाला, ओके, एंड मैं मेरा कैगर अगर कैलकुलेट करूंगा, दैट मे गो अबाउट 35%। अगर मैं 5 साल का हिस्ट्री निकाल के मैं अपना कैगर कैलकुलेट करूंगा, देखो ना अभी 8-9-10 लाख पे इन्वेस्टमेंट था मेरा, 10 लाख पे। एंड वहां से अब 16 बैगर, यानी उसमें सिप भी काफी गई है मेरी, बट मोटा मोटा अगर देखोगे तो 5 से 6 गुना मेरा पोर्टफोलियो शायद सिप के बाद हुआ होगा। 4 या 5 गुना। मैं ज्यादा एक्स्ट्रा फोरकास्ट नहीं कर, लाइक एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी इफ आई कैलकुलेट कैगर फ्रॉम लास्ट 5 years, इट में शो 35+% का कैगर। बिकॉज यार दिस वॉज बॉटम ऑफ द कोविड, राइट। तो आप यहाँ से कोई भी रैंडम आप मंकी को भी स्टॉक सिलेक्ट करने लगाते ना, तो वो भी आपको 25%, 30% का कैगर देता। ओके, सो सो माई थिंग इज लाइक डोंट जस्ट स्टिक विथ निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में खाली 50 स्टॉक है, उसमें से खाली 20 स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, बाकी बचे कुछ 30 स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो निफ्टी आपका बुरा रिटर्न देगा। ओके, निफ्टी ETF लोगे आपको बुरा रिटर्न मिलेगा। ओके, सो दिस इज द जस्ट अ बेसिक थॉट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी कितना, अभी एक ये होता है ना हमें कि यार हमें कितना इन्वेस्ट किया है पोर्टफोलियो में। जस्ट अ मिनट, लेट मी unmute few guys. uh, ओके, सो अभी ये थोड़ा शीट मैंने एक्सपांड किया है। अभी यहाँ पे देखेंगे कि डिविडेंड्स, अभी ये 8 साल में, अभी पोर्टफोलियो 4 साल से थोड़ा डिसेंट बना है। और हमारे सारे स्टॉक्स, इफ आई शो यू द अलोकेशंस, ओके, अब मेरे को बोलो, लोग बोलते हैं यार लार्ज कैप लो नॉन रिस्क की है, लार्ज कैप लो नॉन रिस्क की है। ओके, अभी मिड कैप लो। अभी आई सी मेनी पीपल आर मूविंग देयर फंड्स टू मिड कैप और लार्ज कैप। ओके, my 85% of allocation is in small caps.
स्मॉल कैप रिस्की है क्या यार? आपका छोटा मोटा कंपनी भी ना, लाइक कोई बेरिंग बना रहा है, कोई एलईडी लाइट बना रहा है, कोई ईवी के कंपोनेंट्स बना रहा है, वो छोटा प्लेयर होने के बावजूद भी वो लीडर रह सकते हैं. दैट इज आवर फिलोसॉफी. सो देर इज नो कैप्स एक्चुअली. वी कैन इन्वेस्ट इन लार्ज कैप एज वेल, बट द ओनली थिंग वी आर लुकिंग इन टू, यार मेरे को मेरी कंपनी ना 15% का ग्रोथ देना चाहिए. दैट इज द फिलोसॉफी. दैट्स वाई आई एम हेवीली इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप्स. लार्ज कैप एक भी नहीं है ये पोर्टफोलियो में. मिड कैप के कुछ होंगे, तो मिड कैप में शायद खाली एबी कैपिटल और एक कोई तो है, दो ही कंपनी है जो मिड कैप सेगमेंट में है. बाकी सारे स्मॉल कैप्स है. ऑल द कंपनीज आर बिलो से 8-7-5,000 करोड़ का मार्केट कैप. ओके. सो अगेन, जो रिस्क बोल रहे हैं, आई डोंट फील रिस्की ओवर हियर. स्मॉल कैप्स वोलाटाइल होते हैं बिकॉज लिक्विडिटी यानी नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं, बट स्मॉल कैप रिस्की है. मे बी फिर देन आवर फंडामेंटल्स कम इन टू प्ले. अप्लाई द फंडामेंटल, चेक द डेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स, यू विल कम टू नो कि वो रिस्की है या नहीं है. राइट. एंड अलोकेशंस, अभी मैंने अलोकेशंस देखे सारे, लाइक यहाँ पे मैं कंसोलिडेट किया हूँ दो अकाउंट से. ये खाली ये जीरोधा के अकाउंट के हैं. कंसोलिडेशन अगर करता हूँ मैं तो लाइक दीज आर माई एलोकेशंस. लाइक टूरिज्म में ट्राई आउट किया था, देन रिटेल एफएमसीजी क्यूएसआर में है, फार्मा में है, आईटी में रिसेंटली मैं थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट किया हूँ, आईटी या टेक्नोलॉजी में. देन होम डेकोर है. मैक्सिमम अलोकेशन भी फाइनेंशियल्स में है. अभी फाइनेंशियल्स में अलोकेशंस मेरे थोड़े कम ज़्यादा ये होते हैं. गाइज, जस्ट फॉर योर नॉलेज एज वेल एंड माई नॉलेज एज वेल, अभी ये सारे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं. ओके. सबसे बुरा परफॉर्मेंस कौन से सेक्टर ने किया है लास्ट 5-6 साल में? यानी यार ये ना, ये काम की ही नहीं है यार, ये कंपनियां बढ़ती नहीं है. ऐसे ऐसे आपको फील हुआ कभी गाइस? कौन सा सेक्टर सबसे निकम्मा लगता है आपको? एफएमसीजी. एफएमसीजी तो अभी खराब हुआ है, बट एफएमसीजी तो अच्छा ही है. अभी ये 2 साल से नहीं चल रहा है, मैं 8 साल की बात कर रहा हूँ. एचडीएफसी 8 साल पहले कितने पे था? या कोटक 8 साल पहले कितने पे था? या 5 साल पहले? एचडीएफसी तो काफी फ्लैट चल रहा है काफी दिनों से. एचडीएफसी फ्लैट है, कोटक फ्लैट है, यस बैंक निगेटिव है, आरबीएल निगेटिव है. 700 का आरबीएल 250 पे है अभी. बंधन 700 का बंधन 150 पे है. व्हाट व्हाट दिस शोज, जैसे हम रिटेल का बोल सकते हैं, डिमांड बढ़ गया है, एचयूएल बढ़ गया है लास्ट 6-7 सालों से. यानी अपने हमें केमिकल्स भी मल्टीबैगर हुए हैं, ऑटो एंसिलरी मल्टीबैगर हुए हैं, गारमेंट्स, ये सारी कंपनी मल्टीबैगर हुई है. कौन सा निकम्मा सेक्टर है अभी आप बोलो? फाइनेंशियल्स, राइट. एनपीएस, Yeah. कॉम्प्लेक्सिटी, बुक फट जाती है. आर यू विथ मी गाइस? तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देख लो, विजय केडिया, निमेश, आशीष कचोलिया, ये सारों का पोर्टफोलियो देख लो आप. किसी के पोर्टफोलियो में आपको फाइनेंशियल कंपनी नजर नहीं आएंगी. किसी के पोर्टफोलियो में आपको फाइनेंशियल कंपनी नजर नहीं आएगी. कोई होगा फिनटेक विनटेक, कुछ तो लिया होगा किसी ने. खाली आपको ना म्यूचुअल फंड्स ही फाइनेंशियल कंपनी लेके बैठते हैं. वो फाइनेंशियल कंपनी लेके बैठते हैं. अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रिकॉर्ड निकालोगे, सबसे बुरा परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स में फाइनेंशियल सेक्टर ने किया है. सबसे बुरा परफॉर्मेंस. अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं? वी विल कम टू द पीपीटी. दीज आर माय टोटल बुक्ड प्रॉफिट्स. ओके. मैंने लास्ट 8 साल में ये वाले पोर्टफोलियो में ओके प्रॉफिट बुकिंग भी किया है. पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है. ओके. सो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैंने जो बुक किया है, अभी जो बुक नहीं किया है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है. हो सकता है मेरा आईटी का स्टॉक मल्टीबैगर होगा, मैंने बेचा नहीं है. मैंने हेल्थ केयर के स्टॉक मल्टीबैगर हो गए, मैंने बेचे नहीं है. एफएमजी, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टीबैगर हुए हैं, जो बेचे नहीं है. ये खाली मैं बुक्ड प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ. तो बुक्ड प्रॉफिट सबसे ज्यादा मेरे फाइनेंशियल सेक्टर्स में है.
तो 37 यानी मोस्ट प्रोबेबली लाइक 50 लाख के मैंने प्रॉफिट बुक किए हैं लास्ट 8 साल में। अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी ऐसा नहीं होता है कि मैं स्टॉक लेके बैठ जाऊँ 8 साल। मुझे टाइम टू टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी टैप करना पड़ता है। तो सबसे वोलेटाइल फाइनेंशियल सेक्टर है, बट अगर आपका थोड़ा सा भी एज है फाइनेंशियल्स में, तो शायद आपका, अभी इसमें मेरा सम्मान कैपिटल भी था जो इंडिया बुल्स था, वो लॉस किया है मेरा। शायद ये अकाउंट में लिया है नहीं लिया था मुझे याद नहीं है, मैंने ये खाली प्रॉफिट्स का डेटा निकाला है मेरे। तो यू कैन सी हियर 37% ऑफ बुक प्रॉफिट्स कम्स फ्रॉम माय फाइनेंशियल सेक्टर्स। ओके, तो अगेन मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ फाइनेंशियल्स में। कुछ कुछ फाइनेंशियल्स फट भी गए मेरे, माइक्रो फाइनेंस तो आधे हो गए, बट व्हाट आई सी सेम की 8 साल में फाइनेंशियल्स ने मेरे को अच्छा परफॉर्म करके दिया। देयर आर मेनी स्टॉक्स आई हैव नॉट सोल्ड येट सिंस लास्ट 8 years। वो नोशनल प्रॉफिट्स में है, यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। जैसे जस्ट एग्जांपल एक ल्यूमेक्स है, एक फार्मा कंपनी है, फ्रूडेन, मैं बहुत बार बात किया हूँ, अभी हाई बना रहा है, फ्रूडेन है मेरे पास। ये मैं ये पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। हिमाद्री होगा, एबी कैपिटल होगा, तो एबी कैपिटल के मेरे 2-3 राउंड हो गए। आई इन्वेस्टेड एंड आई एग्जिटेड एज वेल, एंड अगेन आई एम होल्डिंग नोशनल प्रॉफिट, और एक है होल्ड करके एबी कैपिटल का। तो बोलना एक ही है कि market will surprise you, the sector which is not performing, if you are studying well, even though the sector which is not performing since many years can give you better returns। तो इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ मैं फाइनेंशियल पे जाऊँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द सरप्राइजेस व्हाट मार्केट कैन गिव अस। ओके, एंड नाउ से थोड़ा बहुत सिप कर रहा हूँ मैं, बट से अगर हाँ, यहाँ पे अभी लोग ये भी पूछते हैं यार मुद्दल कितना डाला है हमें तूने। ओके, तो इसमें टोटल मेरा अभी क्या हुआ कि मल्टीपल अकाउंट्स है, तो इधर उधर फंड मूव करता हूँ मैं टैक्सेशन के एंगल से भी। तो एक मोटा मोटा अगर देखे तो नेट इन्वेस्टेड, ये टोटल मेरा अंदर गया बाहर भी आया। ओके, अब इसमें से इतना बाहर आया है अकाउंट से, ये टोटल इन्वेस्टेड है। और रिसेंटली मैंने कुछ लास्ट एक क्वार्टर में शायद 8 लाख के आसपास मैंने डाला होगा मार्केट में। मे बी आई मूव सम फंड्स फ्रॉम अदर अकाउंट टू दिस अकाउंट। ओके, सो 73 माइनस अगर हम 8 लाख करते हैं जो रिसेंटली, क्योंकि रिसेंटली तो उतना रिटर्न्स नहीं आया, तो एक मोटा मोटा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो लगभग 66 लाख तक होगी इन्वेस्टेड अमाउंट, एंड 66 लाख पे ये पोर्टफोलियो वर्थ है। लास्ट 3 साल में थोड़ा हेवीली इन्वेस्ट हुआ होगा बिकॉज सैलरी बड़े है एंड सिप बड़ा है। ओके, बट व्हाट मैटर्स टू अस इज द XIRR एज ऑफ नाउ। ओके, एंड डिविडेंड्स, तो लास्ट साल का डिविडेंड यील्ड, तो हम, मैं स्मॉल कैप में, तो मैंने ये स्मॉल कैप दिखाने का रीजन एक ही है यहाँ पे कि स्मॉल कैप ना बहुत कम डिविडेंड्स देते हैं। कुछ कुछ कंपनी तो मेरी डिविडेंड्स भी नहीं देती है, फिर भी लास्ट साल मुझे 1 लाख का डिविडेंड्स इनकम था, जो मैं ट्राई करता हूँ इसको री इन्वेस्ट करने का। अभी उसका भी लॉजिक मैं आगे बताऊंगा कि हाउ दिस विल क्रिएट वेल्थ फॉर अस। ओके, सो नाउ यहाँ पे 2 केसेस है। अभी मान लो आई स्टॉप सिपिंग फ्रॉम टुडे इन दिस अकाउंट। ओके, नाउ आई एम ऑल्सो फुल टाइम इन्वेस्टर, तो डेफिनेटली आई एम कंसिडरिंग द रिटर्न्स ऑफ 20%। तो ठीक है, ये XIRR वगैरह ठीक है, ये मैंने दिखा दिया 25, बट मेरा मेरा फोकस एक ही है, मैं 20% का मुझे रिटर्न बनाना है जो लीनियर नहीं होगा। आई एम कंसिडरिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स का होरिजन। तो 10 ईयर्स में ऐसा रिटर्न क्यों आएगा 20% का? क्योंकि क्या होता है 2, 3, 4, 5, 10 साल में कुछ कुछ स्मॉल कैप्स ना मेरे 10 बैगर 20 बैगर होने वाले हैं। ऑलरेडी आई हैव सीन 10 बैगर्स, 15 बैगर्स, बट आई एम श्योर कि अगले 10 साल में कुछ स्टॉक्स मेरे मल्टी बैगर होंगे। एंड क्या होता है आपका पोर्टफोलियो, गाइज आर यू विथ मी और एम आई गोइंग टेंजेंट और समथिंग लाइक दैट? No, we are getting things. ओके, सो ये 20% क्यों कंसिडर किया मैंने? हो सकता है मेरा पोर्टफोलियो ना 5 साल 6 साल 8 साल ना 15% का ही कैगर करे। ओके, बट 1-2 अगर उसमें मल्टी बैगर आते हैं जिसका अलोकेशन 4, 5, 6, 8%, मैं स्मॉल कैप में अगर वो बढ़ता है तो मैं बढ़ने देता हूँ, बट मैं खुद अलोकेशन 4 या 5% के ऊपर नहीं करता। हो सकता है मैंने 6 साल पहले कोई लिया था स्मॉल कैप,
उसका 3% एलोकेशन था, पोर्टफोलियो बढ़ा तो अभी भी पोर्टफोलियो में उसका 3% एलोकेशन है। ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें और 2% एक्स्ट्रा ऐड कर दूं नया कैपिटल, जो वो स्टॉक का यानी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप 5-6 साल रहते हो किसी स्टॉक में, आपको कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद आप अलोकेशन बढ़ा सकते हो। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा कि मल्टीबैगर होने के बाद आपने बाय ही नहीं करना चाहिए। अभी जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था रिसेंट टाइम्स में, कुछ लोग नहीं थे यानी कुछ लोग थे वो सेशंस में शायद। अभी एक लूमेक्स का मैंने एग्जांपल दिया था। ये स्टॉक में मैं 17-18 से इन्वेस्टेड हूँ, 100 रुपए के आसपास ये स्टॉक लिया था। इसी टाइम पे मैंने बाइंग किया था। ओके, इस टाइम पे थोड़ा किया होगा, इस टाइम पे तो मेरा एक मोटा मोटा 100 रुपीज के आसपास मेरा एवरेज बाइंग प्राइस होगा। एंड आफ्टर 8 years, after 7 to 8 years, I got opportunity in last year to sip it more. तो ये मेरा स्टॉक ऑलरेडी 5-6 बैगर हुआ था, ये 8 बैगर हो गया था, 8 बैगर से नीचे टूटा एंड देन अगेन आई एडेड एंड आई डबल्ड द क्वांटिटी। अब ये एवरेज क्यों करना है? क्योंकि मैं ये पॉइंट ऑफ टाइम से ये स्टॉक में अगर मैं 20 से 25% का रिटर्न देखता हूं डिपेंडिंग ऑन देयर रेवेन्यूज, तो मुझे इसको अलोकेशन बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, स्टॉक डबल भी हो गया ना तो बेच देते हैं। अगर स्टॉक पोटेंशियल दे रहा है, अभी जस्ट एग्जांपल ल्यूमेक्स का एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट एवरी ईयर सिंस लास्ट 2017-18 एवरी ईयर दिस स्टॉक इज ग्रोइंग। अभी ये कोविड का टाइम छोड़ दो बीच का, बट मोटा मोटा दिस स्टॉक इज ग्रोइंग विथ 15 to 20% के कैगर से इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, राइट? तो दैट इज द ओनली फिलोसॉफी कि जो पॉइंट ऑफ टाइम से मैं बाय कर रहा हूँ, वो पॉइंट ऑफ टाइम से मैं कैगर कैलकुलेट करता हूँ कि अभी मैं जो नया पैसा डाल रहा हूँ उसका 15 to 20% रिटर्न आना चाहिए फ्यूचर में। एंड आई गॉट लकी एंड ये स्टॉक ने पेल दिया, यानी विद इन 6 months ये स्टॉक डबल हो गया। दैट वाज अ लकी, आई वाज लकी। देयर आर आल्सो सम ऑटो कंपनीज वेयर दे आर नॉट रैलिड, उनका भी टाइम आएगा। बट मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट आपको पोर्टफोलियो ना कुछ साल आपको 12, 15, 14% का रिटर्न देगा, बट आफ्टर 5-6 years ऑफ योर होल्डिंग पीरियड इन स्मॉल कैप्स दे मल्टी बैग्स लाइक एनीथिंग। अभी इन्वेस्टेड क्यों है हम स्मॉल कैप्स में? मान लो अभी हमने आज ये साल में स्मॉल कैप बाय किया है, अगले साल हम होल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि वो स्टॉक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर लार्ज कैप 12% का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जैसे मदरसन सुमी, मारुति, टाटा मोटर्स, अगर 12% से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो अपना स्मॉल कैप अगर मैं ल्यूमेक्स का कंसीडर करता हूँ केस, तो वो अगर वो थोड़ा परसेंट ज्यादा रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ऑब्वियसली दैट इज द स्मॉल कंपनी, राइट? तो हर साल मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं, तो उसमें मैं स्टॉक प्राइस नहीं देखता कि कितने साल ये स्टॉक बढ़ा नहीं है। रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मैनेजमेंट का फोरकास्ट अच्छा है, कमेंट्री अच्छी है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, जेवी हो रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइंड अप ना। मैं चाहता हूं कि वो बढ़े नहीं, so that I can allocate it more and more and more. Okay, and suddenly what happens, like 8 साल 7 साल ना आपका पोर्टफोलियो 14-15% से ग्रो करता है एंड सडनली आपके 2 या 3 स्टॉक अचानक से 10 बैगर हो जाते हैं। बिलीव मी, दिस हैपन्स व्हेन यू इन्वेस्ट इन स्मॉलर कंपनीज। आपका रिलायंस, एयरटेल 10 बैगर नहीं होगा 10 साल में। ओके, सो दैट इज द फिलोसॉफी। तो इसीलिए फिर मैंने 20% का कैगर रिटर्न ये किया है। तो 2-3 स्टॉक ही ना 5-6% ऑफ पोर्टफोलियो का कैगर बढ़ा देते हैं, पूरा कैगर बढ़ा देते सारे साल का, ठीक है? एंड सो यहाँ पे 10 साल के बाद व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरी वाइफ कैन लीव हर जॉब एंड शी कैन, इफ आई डोंट फंड हर, शी कैन हैव हर ओन लाइफ। सो ये 10 करोड़ हो जाता है आफ्टर इफ आई परफॉर्म 20% पर एनम। ओके, तो एक्सआईआरआर के कैलकुलेशन में हम देखेंगे, अभी एक्सआईआर तो इसमें नहीं होगा, ये कैगर ही कंसिडर कर सकते हैं हम। तो ये अप्रोक्सीमेटली 20% का कैगर रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया है। एंड डिविडेंड कितना है? तो जैसे पोर्टफोलियो बढ़ता है डिविडेंड्स भी बढ़ते हैं। डिविडेंड्स आप देखो, मैंने 0.7% का डिविडेंड कैलकुलेट किया है, क्योंकि मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है जब आपकी कंपनी बड़ी होती है तो वो डिविडेंड ना थोड़ा ज्यादा बढ़ा, यानी हर साल वो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड बढ़ाती है, और डिविडेंड यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी का थोड़ा ज्यादा रहता है। अगर मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा या बीएससी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को 1 to 1.5% का डिविडेंड यील्ड रहेगा। ओके, सो बोलना यहाँ पे एक ही है कि
Dividend in future, dividends will take care of your half expenses of life. Dividend will take care of your half expenses. तो यहाँ पे 7 लाख का डिविडेंड है. बट ये जर्नी में अभी हमें पैसों की जरूरत नहीं है. मोस्टली 90%. मुझे एक खाली आप बताओ, अभी कितने लोग बचे? 17 लोग हैं कॉल में. मुझे एक बताओ कि कितने लोग शिद्दत से अकाउंट में आया हुआ डिविडेंड वापिस अकाउंट में डालते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोग हैं अकाउंट में, जब आपका वो डिविडेंड डिपॉजिट होता है बैंक अकाउंट में, वो फिर से री इन्वेस्ट करते हैं? कितने लोग ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं? मेरा है एक्चुअली, मेरा शेयर मार्केट का अकाउंट ही सेपरेट है, तो उसका उसमें इन्वेस्ट हो जाता है वो. अच्छा, वो आप री इन्वेस्ट, कूल, यानी वैभव फॉलो कर रहा है ये प्रोसेस. एनीवन हु इज Yeah. फॉलोइंग दिस प्रोसेस? एनी अदर पर्सन? Yeah, my सचिन कर रहा Sachin, होगा. I follow the book. हाँ, सचिन करता है, मुझे पता है. ओके. या सो यहाँ पे अभी क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको आपका रिटर्न 0.7, सो 0.7% इज अ ह्यूज रिटर्न पर ईयर. ओके, अगर मैं ये डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट करता हूँ मेरे स्टॉक्स में, तो मेरा एक्सआईआर ना 0.75 से बढ़ जाता है. मेरा एक्सआईआर 0.75% से बढ़ जाता है. तो मैं अगर ये दोनों का कंपैरिजन करता हूं, तो यहाँ पे मैं 10.1 करोड़ का मेरा वर्थ हो गया है. ओके, और यहाँ पे जो है वो 10.8 सीआर का वर्थ हो गया है. तो अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ, तो 6% ऑफ इनकम मेरा एक्स्ट्रा जनरेट हो जाता है इफ आई री इन्वेस्ट. अगेन आई एम ओनली कंसिडरिंग स्मॉल कैप, यानी 0.7% का ही मेरा इसमें जाएगा पैसा, राइट? 0.7% का डिविडेंड यील्ड ही मेरा री इन्वेस्ट होगा. बट अभी आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ गया है यारो. तो 7% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज ऑलमोस्ट 70 लाख रुपीज आप एक्स्ट्रा कमाओगे. एंड देन यू कैन लाइक, मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी अभी मेरे केस में क्या हो रहा है कि डिविडेंड अभी उतना मैं री इन्वेस्ट नहीं करता हूँ. बट मैं डिविडेंड मेरे इसमें नहीं करता हूँ, मैं बच्चों के इसमें मेरा डिविडेंड जाता है. मेरा खुद के अकाउंट में डिविडेंड नहीं जाता है. तो बच्चों का जो सिप चल रहा है उसमें मैं मेरे सारे डिविडेंड्स पार्क कर देता हूँ. ओके, तो देर इज अ ह्यूज, तो 70 लाख यानी लाइक यू कैन दिस लाइक 10 साल के बाद पुणे जैसे सिटी में आपके जब बच्चे जॉब वॉब पे लग जाएंगे, तो आपको कंसिडरिंग इन्फ्लेशन एज वेल, आपको 1 लाख के ऊपर ना नहीं लगने वाला है. तो अगर मैं 1 लाख भी पकड़ता हूँ कपल्स को, ओके, ये मैं 50 एज है हमारी, ओके, हम 50 एज की बात कर रहे हैं. जो यंग है, आपका काम है कि मेरा पोर्टफोलियो 35-40 के जब मैं हूँगा, जो जो अभी 30-25 साल के जो हमारे मेंबर्स है अभी जो ज्वाइन किए हुए हैं, ओके, तो मैं बोलूंगा हम एक टारगेट कर. हेलो गाइस, प्लीज वन म्यूट. पन्नू म्यूट हो जा. सॉरी. ओके. सो यहाँ पे क्या बोलना है मुझे कि जो यंग लोग हैं ना, वो टारगेट करो कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे इन्वेस्ट करें. ओके, तो आपका बेस क्रिएट होना इंपॉर्टेंट है. अभी आप देखोगे ये अकाउंट में मैं ना एक पेनी नहीं डालूंगा अगर 10 साल मैं सीपी नहीं करूंगा. सीप तो होनी है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं ना आज से सीपी नहीं करता ये पोर्टफोलियो में. एंड आई विल एंजॉय माई सिप्स. अभी मैं मेरा मोड ऐसा हो गया होगा कि मैं मेरे वाइफ का सेविंग जो है या मेरा सेविंग जो है हम एंजॉय करते हैं ना. हमको इन्वेस्ट ही नहीं करना है लाइफ में अभी, बस जो इन्वेस्टमेंट है ना वो पड़ा रहे. फिर भी आपको आपका जब बेस क्रिएट होता है वो आपको फ्यूचर कंपाउंडिंग के लिए बहुत हेल्प करता है. अभी ये मैंने 51 साल तक के ही कंसिडर किया था. ठीक है, इंडियन मेडिकल इंडस्ट्री इज गोइंग फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग. कैंसर्स के क्योर आ रहे हैं, अलग अलग बीमारियों के क्योर आ रहे, बीमारियां भी बढ़ रही है बट उनके क्योर आ ही रहे हैं, राइट? तो हमारा जो अभी के डेट में 70-75 का जो ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी इंडिया में जो 78 का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, यानी लोग एवरेज 78 to 80 ईयर्स
सर्वाइव कर सकते थे, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी ये 15 साल में थोड़ा सा घट गया है, शायद वो 70-75 के रेंज में आ गया है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, थोड़ा घट गया है। बट ये फार्मा और अभी सारे लोग ना फूड को लेकर बहुत जागरूक हुए हैं, हेल्दी खाना, हेल्दी पीना, फ्रूट्स, ये वो घर का खाना। अभी पुणे जैसे सिटियों में हो रहा है थोड़ा सा जोमेटो वोमेटो का इशू, बट हम हेल्थ की तरफ अभी फोकस कर रहे हैं, राइट? तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना ज़्यादा ही रहने वाला है। ओके, 1.5 साल पहले हमारे पूजनीय एस बी कुलकर्णी सर गुजर गए। उनका एज 90 था जब वो गुजरे थे, लाइक 1.5 साल पहले की बात है। जब हम उनको मिले थे उनका एज 80 ईयर्स था। हमको इन्वेस्टमेंट सिप्स, हम ना रिटायरमेंट होने का बहुत जल्दी सोच रहे हैं, राइट? अब मैं बोलूंगा यार एआई वगैरह आएगा, आपका काम आसान करेगा और आपका काम थोड़ा फास्ट होगा, एआई एमएल या वॉट एवर यूज करके। तो आपका, लाइक वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड 50 ईयर्स, राइट? बट वॉट इफ वी थिंक अबाउट अबाउट 50 ईयर्स? किसी ने इन्वेस्टमेंट सिप का सोचा है 50 साल के बाद मैं सिप करने करूंगा या समथिंग लाइक दैट? नो। किसी ने सोचा है गाइस? नो, आई थिंक with the current this, right, it will be tough to sleep after 50. That's what I ये think. हम तो बोलेंगे यार 50 तक के ही एंजॉय कर लो लाइफ, बाद में कोई गारंटी नहीं है, राइट? तो वी आर नॉट Exactly. वी आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दिस 50 एज। अगेन लेट मी शो वन मैजिक। ओके, लेट मी चेक, वो विंडो ओपन है क्या मेरी? ओके, एक जस्ट एक इमेज थी मेरे को जस्ट दिखानी थी आपको। ओके, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? ये वॉरेन बफेट का नेटवर्थ है। ओके, लेट मी डाउनलोड इट। मैं अपना भी बताऊंगा, ओके, मैं मेरा भी प्लानिंग बताऊंगा। इस ऐसा ही नहीं कि मैं अपन वॉरेन बफेट का देख के खुश हो जाएंगे। ओके, अभी वॉरेन बफेट ने 56 एज या 53 एज में, अभी यू कैन सी हाउ हिज एसेट्स आर ग्रोइंग, हाउ हिज इन्वेस्टमेंट इज ग्रोइंग, हाउ हिज नेटवर्थ इज ग्रोइंग। ओके, तो 47 की उम्र में $67 मिलियन, एंड आफ्टर 6 ईयर उनके वही अभी खुद का ही वो स्टॉक है, तो वो बढ़ ही रहा है, लिक्विडिटी कम है उनकी, वो 1 बिलियन हो गया है। एंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में, यानी 56 के जब थे तब 1.4 बिलियन हुआ है। एंड फास्ट फॉरवर्ड, आज का उनका उम्र देखिए, अभी अपन बोलेंगे यार इतना साल कौन जिएगा, बट ऐसा नहीं है। देर आर मेनी थिंग्स, वी विल एंजॉय अवर लाइफ एज वेल, तो पैसा खर्चा भी करना है अपने को। तो बोलना है कि ये कि देर इज अ स्टडी के 95% of your wealth is created after 50s. I am again repeating, if you have not started, maybe आप 55 कंसिडर कर लो यार, अगर कोई 40 45 35 के एज में भी होगा आज के डेट में, तो मैं ये बोलूंगा कि आफ्टर 55, 95, मोर देन 95% ऑफ वेल्थ, अभी वॉरेन बफेट के केस में 99% ऑफ वेल्थ उनकी क्रिएट हुई है उनके रिटायरमेंट के बाद, यानी उनके 55 के बाद, राइट? 50 के बाद अगर देखोगे तो 150 गुना, यानी 0.5% का वेल्थ था उनका 50s में, एंड 99.5 वेल्थ उनका क्रिएट हुआ है रिटायरमेंट के बाद। तो मैं अगेन, मैं इतना साल अ, अ, बचत करके रहेंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ओके, बट ये पॉसिबल है। तो फिर जब मैं खुद का फोरकास्ट करता हूँ, खुद के पोर्टफोलियो का भी मैंने कुछ ये किया है। वेयर इज इट? ओके, सो अगर मैं 30 साल के बाद अगर मैं देखूँ तो इसमें मैं फिर क्या प्लान किया हूँ, इसमें दो चीजें हो सकती है। अभी डिविडेंड कितना री इन्वेस्ट करोगे यार, खुद के लिए भी एंजॉय करो। कोविड के बॉटम में मैंने कुछ सुपर बाइक ले ली, चलाता नहीं हूँ, बीच बीच में दूध लेने जाता था मैं सुपर बाइक लेके, पड़ी रहती है घर पे फ्रेंकली स्पीकिंग। तो मैंने डिविडेंड से सुपर बाइक सेकंड हैंड ही खरीदी थी, बट डिविडेंड से खरीदी थी। ओके, सो यू कैन एंजॉय द डिविडेंड्स, राइट? तो मेरे को क्या बोलना है कि इफ आई exceed the life expectancy till 70s, and my
और अवर फंड्स आर इन्वेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, तो जो मैंने बताया कि जी ये आज की वैल्यू है, हर साल ये वैल्यू बढ़ेगी। 51 में वो वैल्यू 10 पॉइंट समथिंग सीआर हो जाएगी। अभी ऐसा समझ लो यार, डिविडेंड में री इन्वेस्ट नहीं करना है, मेरे को एंजॉय करना है डिविडेंड्स लेके, राइट। 55 में अभी ये जो डबल हुआ है पोर्टफोलियो, अभी मैंने क्या किया है कि 20% का कैगर, अभी ठीक है यार, उम्र हो गई, हम इन्वेस्टमेंट मैं खुद शायद नहीं कर पाऊंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं जा रहा हूँ हिमालय घूमने, जा रहा हूँ मैं हर साल, मेरे को नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, तो मैं जब तक के कर रहा हूँ तब तक के मैं 20% का लाऊंगा। और उसके बाद क्या करना है, मैं मेरे पैसे जो है मैं किसी 4-5 अच्छे फंड मैनेजर को दे दूंगा, जो मेरे को 15-18, और ये अभी देखो यार, आप बोलोगे यार निफ्टी बढ़ रहा है, इतने रिटर्न्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। आज 5,000 लिस्टेड कंपनियां हैं, नई नई कंपनी ऐड होगी जो सिमिलर ग्रोथ देगी। आप ये सोच के मत जाओ कि यार मार्केट कितना ही रिटर्न देगा। देयर विल बी न्यू एज टेक्नोलॉजी की कंपनी तो अभी आई नहीं है इंडिया में, एंड दोज कंपनी विल क्रिएट वेल्थ फॉर अस, बिलीव मी। अभी तक हाईटेक कंपनीज आई नहीं है, एंड इंडिया में अभी आज ही मैं महिंद्रा के साथ डिस्कस कर रहा था कि $1 ट्रिलियन की कौन सी कंपनी हुई है हमारे नजर में। एक दो छोड़ दी है, अगर रिलायंस अगर डीमर्ज करवाता है अपने जियो को, तो दोनों का मिला के शायद हो पाएगा $1 ट्रिलियन। अडानी शायद पहुंच जाएगा $1 ट्रिलियन, बट अगेन वी नीड द टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक अभी आए नहीं है, तो गाइस बिलीव मी, आफ्टर 10 years और मे बी आफ्टर 5 years अभी भी अच्छी कंपनियां टेक्नोलॉजी की आ गई है इंडिया में। यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट विच आर दे, ओके। क्लाउड, एआई, एमएल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, ओके, देर आर मेनी कंपनीज। कभी आओ लिस्ट लेके, मैं तुमको और 10 स्टॉक बताऊंगा कौन कौन से, राइट। तो फ्यूचर विल बी मोर ब्राइटर। तो ये 18% नहीं, शायद ज्यादा भी होगा रिटर्न, बट स्टिल आई एम कंसिडरिंग 18% कि भाई मेरे को रिटायरमेंट लेनी है 50 के बाद। आई विल हैंड ओवर माई फंड टू सम फंड मैनेजर्स एंड आई विल एंजॉय माई लाइफ, ओके। तो अच्छे फंड मैनेजर्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलने वाले हैं, राइट। तो आप देखोगे कि 60 में, लाइक 50 में कितने हुए, 10 करोड़, विथ 18% कैगर। 60s में वो होते हैं 45 करोड़, 65 में होते हैं, ये कितना है गाइस, दिख रहा है ये 100 करोड़। सो शायद अगर ये इन्वेस्टेड रहेंगे पैसे, तो मेरे वाइफ का वर्थ 100 करोड़ हो जाएगा। एंड अगेन गाइस, दिस इज नॉट अ जोक, ठीक है। हम 8 साल पहले शुरू किए थे, वी वी वेर सरप्राइज टू सी सर्स पोर्टफोलियो, एंड नाउ आई कैन सी आई हैव, यानी जो सर का फंड शायद उस टाइम पे था, वो शायद मैं अभी सरपास कर गया हूँ, राइट। तो so this is like, this will really compound. The only thing is you need to be 100% invested, ठीक है। और उसमें फिर स्ट्रैटेजीज लगाएंगे, पीक पे थोड़ा सा कैश में आ जाएंगे ना, 20% कैश में, अगर उम्र हो रही है, क्योंकि अभी सपोज मैं सिप नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वो स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ेंगी, वो अलग पार्ट है फंडामेंटल्स एंड स्ट्रैटेजीज का। तो ऐसा है, तो इन 71 दिस वर्थ विल बी 270 करोड़। एंड अगर हम डिविडेंड भी, अभी मैं बोलूंगा कि यार मेरे वाइफ को कि मैं तेरे एक्सपेंसेस ये करता हूँ, देन वी विल री इन्वेस्ट द डिविडेंड, और उसका भी गैप देख लो। ये डिविडेंड्स जो हम री इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका ही वर्थ, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का वर्थ कितना हो रहा है यहाँ पे, 60 करोड़ का डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का वर्थ हो रहा है अगले 30 साल में। यानी अगर मैं डिविडेंड, गाइज आर यू गेटिंग, ये कितना हो रहा है, तो हर साल का जो डिविडेंड है वो भी कंपाउंड हो रहा है। एंड द लास्ट ईयर में बी वी मे गेट 2.3 करोड़ का डिविडेंड ओनली, ओके। सो अगेन मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड चले गया, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द ओनली ऑप्शन वी हैव इज टू बी इन्वेस्टेड इन मार्केट, एंड जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिप को थोड़ा सा बढ़ा दो, दैट विल बीट योर ओन पोर्टफोलियो। अगर आपने कुछ एक्सपेक्टेशन किया होगा यार मैं 15% का कैगर मारूंगा, तो अगर आपने डिप्स में भी बाय किया ना, तो आपके ही पोर्टफोलियो के एक्सपेक्टेशन को आप 2-3-4% से बीट करोगे इफ यू बाय मोर इन द डिप्स। मैं हमेशा क्यों ये फेज में, आई हैव सीन पीपल स्टॉप्ड इन्वेस्टिंग, दे आर वेटिंग फॉर बॉटम, माय फ्रेंड्स हु आर
विथ मी आर सिपिंग, आवर सिपिंग रेट इज 100% का सिप आ रहा है हमको. एक एक्सेप्शनल केस है, आई डोंट वांट टू डिस्कस, बट 100% का सिप मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं जो हमारे नेटवर्क में है. Nobody has missed the lump भी आ रहा है. And I am glad के I am surprised to see how dedicatedly they are doing the sips. Okay, so that's it. And और कुछ है क्या पीपीटी में? हाँ, वही क्वालिटी कंपनी, ग्रोथ वाली कंपनी, लॉन्जेटिविटी देखो. और एक चीज है यहाँ पे आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर स्टिल ऑन, बट यहाँ पे ना हम क्या बोलते हैं कि यार मैं ना ये ऑटो का स्टॉक ये एक XYZ बेच देता हूँ, इसके बदले में दूसरा ऑटो का स्टॉक ले लेता हूँ. ओके, यानी मेरा ये मल्टी बैगर हो गया है, अभी मैं ना दूसरा मल्टी बैगर टैप करूंगा. बॉस, ऐसी गलती नहीं करनी है. इफ यू गॉट द मल्टी बैगर इन बिटवीन, जस्ट एग्जाम्पल, मैं कोशिश क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल आयशर मोटर्स. हम मिस्टेक क्या करते हैं, हमको क्या लगता है ना मेरा एक मल्टी बैगर हो गया है, वो मल्टी बैगर बेच के मैं दूसरा मल्टी बैगर खरीद लूंगा. ऐसा नहीं होगा. अगर वो होगा देन समझ लो कि यू आर द एक्सपर्ट. ओके, बट 99% द चांस इज आपको सिक्वेंशियली मल्टी बैगर कोई नहीं मिलेगा. सिक्वेंशियली व्हाट आई मीन टू से इज, let me just give you a quick example, then we will go for the queries. um, just एक मैं स्प्रेडशीट लेता हूँ. ओके, जस्ट मेरा ये से स्टॉक 1 है. ओके, और ये मैंने 2000 से 10 में खरीदा है. ओके, ये दूसरा स्टॉक है. ओके, ये स्टॉक 2 है. सेम सेक्टर में है ये दोनों स्टॉक. ओके, सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इसमें 100 रुपीज इन्वेस्टेड हो और ये टाइम पे ये 700 का हो जाएगा एंड देन आप इसको बेच के ये दूसरा स्टॉक 100 पे खरीद लोगे. ऐसा बहुत रेयर होता है, बिकॉज व्हेन यूर स्टॉक 1 इज मेकिंग पीक ना, ये स्टॉक 2 भी कहीं ना कहीं पीक कर रहा होगा, राइट. तो 100 यानी हो सकता है ये स्टॉक 50 रुपए से 100 चले गया है एंड यू आर बाइंग इट एट पीक. मैक्सिमम इन्वेस्टर, ये कोई नहीं बताएगा आपको गाइस, ये कोई फंड मैनेजर नहीं बताएगा, ये कोई इन्वेस्टर नहीं बताएगा. द दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक वी आर डूइंग. अभी क्या होता है, ये स्टॉक अगर तुम ये बेच के, मान लो अभी यहाँ पे आपने 100 रुपए पे खरीद लिया है, बट इसका भी कोई पास्ट हो सकता है, ये स्टॉक ने भी कुछ रिसेंट पास्ट में रैली किया. अभी आपने ये क्यों बेचा, आपको लगा कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मेरा प्रॉफिट निकल गया है, अब मैं ये बेच के ये खरीदता हूँ, ये अपन सोचेंगे. बट ऐसा गलती मत करो. जब ये स्टॉक आपका मल्टी बैगर के जर्नी में रहता है, मल्टी बैगर अगर मान लो ये स्टॉक आपका हो रहा है ये जर्नी में, राइट, तो आप दूसरे मल्टी बैगर या दूसरे स्मॉल कैप साइड में ढूंढना चालू कर दो ना. हम चालू नहीं करते, हमको क्या लगता है भाई ये ना यही मेरी लाइफ बना देगा. ये दूसरा स्टॉक ढूंढना चालू करो. हो सकता है 12 में, 14 में, 15 में आपको स्टॉक 2 मिल जाए, तो इसमें ना आप थोड़ा सा लोकेशन कर दो ना, 1% ही डालो ना इसमें, दूसरे साल और बढ़ाओ. और फिर जब ये एग्जिट करोगे ना, तो ये पूरा एग्जिट कर भी सकते हैं, बट और क्या हो जाता है दिक्कत, जब ये एग्जिट करते हैं ना, ये स्टॉक और भागने लगता है, बिकॉज फंडामेंटल्स आर अटैच्ड विथ इट, राइट. समटाइम यूफोरिया इज अटैच्ड विथ इट. सो ये ट्राई करो कि ये पूरा ना बेचते हुए थोड़ी क्वांटिटी बेच के स्टॉक 2 लो एंड स्टॉक का अलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाओ, जब तक आप सेटिस्फाइड हो कि यार ये स्टॉक 2 मेरी लाइफ अभी चेंज करेगा. then exit from this stock because your allocation will be huge if you buy 2 stocks of same sector. Are you getting my point guys? हम मोस्टली मिस्टेक क्या कर देते हैं, हमको लगता है ये मल्टी बैगर हो गया ना, ये बेच के ना दूसरा मल्टी बैगर ले लेता. ऐसा नहीं है. अगर मार्केट डाउन जाएगा ना, तो आपका ये भी स्टॉक डाउन जाना ही है, बिकॉज वो भी बड़ा है ना आपके दूसरे स्टॉक के साथ. तो ये जब नीचे जाएगा तो आपका कैपेसिटी रहना चाहिए इसको और बाय करने का.
दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रेटजी एंड दिस इज हाउ मेनी पीपल डू मिस्टेक, कि अपने को लगता है एक स्टॉक बेच के ना अपन दूसरे स्टॉक में आराम से, यानी अपना क्या बोलना रहता कि ये 7 बैगर हो गया ना, तो ये अभी ना मैं नेक्स्ट कुछ साल में ना 5 बैगर कर दूंगा, यानी मेरा 7 into 5 कितना 35 गुना रिटर्न हो जाएगा अगले फ्यू ईयर्स में। ऐसा नहीं होता है, आपको आपका भी स्टॉक गिरने का चांसेस है, तो मे बी वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू बाय मोर सच स्टॉक्स। आई होप you all are with me for this concept. Okay, एंड डिप्स बाय करो, एंड जो लास्ट स्लाइड क्या है, और वही और कैसा है अभी, जस्ट एग्जांपल, अभी ये जो पोर्टफोलियो है हमारा, इसमें अभी 40 स्टॉक है, और 30 स्टॉक का हाई एलोकेशन है। ओके, 30 स्टॉक का हाई एलोकेशन है। गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में आपके जो फेवरेट स्टॉक है उसमें आपको धीरे धीरे एलोकेशन बढ़ाना है, और वो बढ़ा के छोड़ देना है, 2-3 साल एलोकेशन करो फिर छोड़ दो। आपका एक ही स्टॉक, यानी अभी हो सकता है कि अगले साल ये कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं मैं, आई विल जस्ट फोकस ऑन फ्यू स्टॉक्स ओनली, एंड फोकस यानी अलोकेशन वाइज आई विल फोकस ऑन फ्यू स्टॉक्स ओनली, एंड जो बाकी का है वो बढ़ते रहेगा। एंड बिलीव मी, आउट ऑफ दिस 30 मे बी 5 स्टॉक्स विल चेंज योर लाइफ। आउट ऑफ 30 there will be only 10 to 20% stock which will change your life. So every time your portfolio grows, make sure you are rightly allocated. आपका allocation अच्छा होना चाहिए। 1%, आधा परसेंट, 2% लेके ना आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है स्टॉक में। आपका allocation ना अच्छा चाहिए। एटलीस्ट स्मॉल कैप में 4-5% का कम से कम allocation चाहिए, यानी अगर वो मल्टी बैगर होता है, मान लो 5 बैगर भी हो गया, तो आपके पोर्टफोलियो वर्थ का वो कम से कम 25% का रिटर्न अकेला ही स्टॉक निकाल के देता है, आउट ऑफ 20 स्टॉक्स, इफ वी कंसिडर दैट थिंग। ओके, सो बिग बेट्स, मेक श्योर योर अलोकेशंस आर रीजनेबल एंड प्रिटी गुड। एक आधे परसेंट, और ये परसेंट के अलावा मैं तो बोलूंगा यार, आप आपके सैलरी जितनी आती है ना, वो एक महीने के इन एंड में, हमेशा बात कर रहा हूँ, पुराने लोग बोर हो गए ये सुन सुन के, इनिशियल फेज में एक सैलरी जितना आपका एक स्टॉक होना चाहिए, और साल में 2 ही स्टॉक बाय करो, साल में 3 ही स्टॉक बाय करो, तो मंथली एक सैलरी जितना एक स्टॉक होना चाहिए। वो आपको, क्योंकि एक सैलरी जितना क्यों, क्योंकि हम सारी चीजें ना सैलरी को लेके कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो आपका स्टॉक अलोकेशन भी वैसे ही होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें बता दी है हम, एंड लाइक वही है, कंटिन्यूअस जर्नी है, लाइक ह्यूज नॉलेज बेस होएगा, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड हो गए, बिजनेसमैन हो जाएंगे हम, ह्यूज लर्निंग, एडेप्टिव माइंड हो जाएगा। सर 90 की उम्र में भी एडेप्टिव थे, हम लिसन करते थे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सर लिसन करते थे। ऐसा नहीं कि खुद का झाड़ झाड़ दिए, यानी मेरे को नहीं सुनना है बच्चों का, ऐसा नहीं, हम एडेप्टिव भी बन जाएंगे। ग्रेट IQ EQ बढ़ेगा, एंड ऑब्वियसली जब आपके पास आपका पोर्टफोलियो जब ह्यूज होगा, यानी ये जर्नी में ही, एक्चुअली ये जर्नी में ही आप, एज आई एम सेइंग, ये पूरा पैसा आप लेके नहीं जाने वाले हो, बच्चों को नहीं लगने वाला है। बहुत सारी चीजें हो सकती है जो सोशल एंगल से देखा जाए तो यू विल बी एक्सेलेंट ह्यूमन बींग्स। यस, एनी क्वेरी गाइस? हेलो हेलो। Yeah, no queries.